will see numerical of plane truss by using method of joints. So here you can see the problem where it is mentioned as find out forces in all members of truss mentioning their nature, that is tension or compression. T stands for tension, C stands for compression. So whenever we get the answer as positive, we will tell it as tensile. Whenever we get an answer as negative, we call it as compressive. So steps are already shown to you. Now we will follow that step. So always our step number 1 is the stability check. So we will first check whether the structure given to us is a stable one or not. For that purpose, we have already studied this thing, that how many actual numbers of members we have in a structure. So member is what? The link between two joints. So AB is one member, BC is second member, CD is third, AD is fourth, and BD is 5. So actual number of members we have is 5. Now to find out how many number of members we require to make it as perfect truss, is the formula is 2j minus r, which for plain truss we use it as 2j minus 3. Why 3? Because for plain truss the given number of unknown reaction is, as you can see, this is an hinge support. So for hinge support the number of unknowns are always two reaction. One is horizontal reaction, another one is vertical reaction, which we call it as RAX and REY. Here you can see it is a roller support. So number of unknown will be 1, जो reaction रहेगी हमारी RC. ठीक है. So ये दो unknown और ये एक unknown मिलके बना हमारा number of unknowns of RS 3. अब हम देखेंगे कितने number of joints है. तो 1, 2, 3, 4. So we have number of joints as 4. तो हमारे required number of members बनेंगे 2 into j मतलब 4 minus 3. So 2 into 4 minus 3 will makes it as 5. So as you can see, our actual number of member is also 5. Required number of member is also 5. So as our actual number of member is equal to required number of members, therefore it is a perfect truss. Okay. So that will be always our step number 1. So we get it as it's a perfect truss. Now we will go on our step number 2. Step number 2 is calculation of support reaction. So for plain truss we always calculate support reaction in step number 2. Okay. So for support reaction calculation, as we have already seen, we have three unknowns, RAX, RAY and RC. Now we will apply conditions of equilibrium. Apply condition of equilibrium. Okay. The condition of equilibrium we apply to find out the unknowns. So now we have three unknowns with us. So we will apply our three conditions of equilibrium. The very first condition of equilibrium is summation f of x is equals to 0. When we apply summation f of x is equals to 0, you should first of all recall the sign conventions which we follow. The sign convention says that the rightward forces are always taken as positive, okay, and the leftward forces are always considered as negative. So we will follow that same concept over here. Now I will see how many forces we have in our question in horizontal direction. You can see this 9 kilonewton force. The direction of this force is towards left. Means summation f of x में आएगा minus of 9. ठीक है. Is there any other force? Yes. RAX horizontal direction में है. किधर है? Rightward. मतलब minus of 9 plus RAX is equals to 0. There is no other horizontal force. So we get the value of RAX is equals to minus 9 इधर जाएगा तो बनेगा plus 9. So we get the value of RAX as 9 kilonewton. तो हमें तीन अननोन में से एक रिएक्शन की वैल्यू मिल गई. ठीक है. अब हम क्या अप्लाई करेंगे? अब देखो, अगर मैंने समेशन एफ ऑफ वाई अप्लाई किया, सो आर ए वाई भी अननोन है, आर सी भी अननोन है. सो इन सच केसेस वी अप्लाई आवर सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है समेशन ऑफ मूवमेंट about any one support is equals to 0. So we will apply summation of moment about point A is equals to 0. So summation of moment about point A, for that purpose, as we previously seen, we need to see the sign convention. If clockwise movement is generated, we will take it as negative. If anti-clockwise movement is generated, we will consider it as positive.
Okay, these are the sign conventions we will follow. Now one by one we will see. So if we are taking moment about point A, the moment of Rax will be 0 because the force itself is passing through point A. So there will be no distance. Now if we say Ray is also passing through point A. So moment is what? Force into perpendicular distance. So for these two forces there is no perpendicular distance. Hence the moment because of these two is 0. अब हम देखेंगे RC का मूवमेंट. RC का मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए. आप देखोगे जब आप RC को ए की तरफ ट्विस्ट करते हो तो ये कैसे मूवमेंट जनरेट करता है? लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस डिस्टेंस और दिस मूवमेंट जनरेटेड इज एंटी क्लॉकवाइज. दैट्स व्हाई प्लस ऑफ RCY. अब ये फोर्स क्या है? RC आपका फोर्स जो है दैट इज वर्टिकल फोर्स. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. दैट्स व्हाई RC इंटू 6. ठीक है, मूविंग अहेड. अब और कौन से फोर्स है जिसका मूवमेंट लेना बचा है? तो हम देखते हैं हमारे पास है 30 का फोर्स. ठीक है, ये 30 का जो फोर्स है फोर्स वर्टिकल है. इसका मूवमेंट जब हम अबाउट पॉइंट ए कंसिडर करेंगे तो आप देखो फोर्स का डायरेक्शन डाउन है, डिस्टेंस इस साइड है. मतलब अगर आप मूवमेंट लेते हो तो इट विल गो लाइक दिस. अगर वो ऐसे जाता है मतलब कैसे जा रहा है आपका मूवमेंट? क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस. ओके, वी हैव सीन दिस. तो क्लॉकवाइज है तो माइनस ऑफ 30 इंटू फोर्स वर्टिकल तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मतलब 2. ठीक है, सो 30 की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा दैट इज माइनस ऑफ 30 इंटू 2. अब ये जो 9 किलो न्यूटन का फोर्स है ये भी तो एक फोर्स है ना, तो ये ए से तो पास नहीं हो रहा, मतलब मूवमेंट तो जनरेट करेगा. तो अब मूवमेंट कैसे जनरेट करेगा? जब आप 9 को ट्विस्ट करते हो अबाउट पॉइंट ए, इट विल गो लाइक दिस. सो ये कैसा डायरेक्शन है? ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लस, मतलब प्लस ऑफ 9. अब ये फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आना चाहिए? वर्टिकल. दैट मीन्स 3. ओके, इज इक्वल्स टू 0. सो वी हैव दीज 3 फोर्सेस. अब ये दोनों फोर्सेस नोन है तो इस पे से आपको RC की वैल्यू मिल जाएगी. सो वंस यू सॉल्व इट इन कैलकुलेटर यू विल बी गेटिंग एन आंसर फॉर RC एज 5.5 किलो न्यूटन. Okay, once we solve this thing we'll get an answer for RC as 5.5 kilonewton. So this will be the answer for our second reaction. अब हम हमारी तीसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ f of y is equals to 0. फॉर दैट पर्पस जो साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, अपवर्ड फोर्सेज आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव. तो अब जब हमने f of y is equals to 0 लगाया, देखिए RAY अपवर्ड है तो पॉजिटिव. ठीक है, RC अपवर्ड है तो पॉजिटिव एंड 30 का लोड डाउनवर्ड है तो निगेटिव. ये 3 ही फोर्सेस है जो y डायरेक्शन में है. इसमें से हमारे पास RC की वैल्यू ऑलरेडी है. तो जब हम RC की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें RAY की वैल्यू मिलेगी. RAY इज इक्वल्स टू 24.5. When we put the value of RC in that, we get an answer for RAY as 24.5 kilonewton. So always you should write down the units for the force which you get. So with this our step number 2 is completed, where we have the values of reactions with us. So whatever answers we have got for the reaction, we'll make a note of this with us. RAX is 9, so I'll be denoting it over here that the value of RAX is 9 kilonewton. ठीक है, वैल्यू ऑफ RC इज 5.5 किलो न्यूटन एंड द वैल्यू ऑफ RAY इज 24.5 किलो न्यूटन. ठीक है, सो आई बी डिनोटेड दैट आंसर सो दैट वी कैन रेफर दोज आंसर्स लेटर ऑन. नाउ वी विल मूव ऑन आवर स्टेप नंबर 3. सो फॉर ट्रस्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज, we'll make an space over here for our step number 3. So step number 3 is zero member identification. ठीक है, zero member identification. So in given truss, if any zero member is there, we will be finding out that in step number 3. So for that purpose you should recall the concept which we have studied. zero member वो होते हैं, एक तो होना चाहिए T junction या तो होना चाहिए V जंक्शन. सो विल चेक फॉर इट. अगर मैं A पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे 1, 2,
3 4, 4 फोर्सेज है, मतलब ना टी बन रहा है ना वी बन रहा है। अगर मैं बी जॉइंट पे देखूं तो 2 फोर्सेज और 3 मेंबर मतलब 5 है, तो ये भी ना टी को जस्टिफाई करता है ना वी को। अब अगर मैं देखूं सी पे तो ये 2 और ये 1 3 है, लेकिन टी के लिए क्या चाहिए, 3 में से 2 कोलिनियर, सो इट इज नॉट जस्टिफाइंग दैट कंडीशन। जब मैं डी जॉइंट को देखती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 कोलिनियर है, इसका मतलब जॉइंट डी है ना, जॉइंट डी इज टी जंक्शन। हमारा जॉइंट डी जो है वहां पे हमारी टी जंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब अगर हमारी टी जंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम देखते हैं हमारा जॉइंट एग्जैक्टली है कैसा। तो ये है हमारा जॉइंट डी, जिसके लिए नेमिंग कैसे देते हैं हम, ये आप डी से बी की तरफ जा रहे हैं ना, सो यू कॉल इट एज एफ डी बी। ओके, डी से सी की तरफ जा रहे हैं तो आई विल बी कॉलिंग इट एज एफ डी सी। डी से ए की तरफ जा रहे हैं सो आई विल बी कॉलिंग इट एज एफ डी ए। अब हमारे टी जंक्शन की कंडीशन है कि अगर 3 ही फोर्सेस है, 3 में से 2 कोलिनियर है तो तीसरा 0 है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि द वैल्यू ऑफ एफ डी बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एज इट इज टी जंक्शन। अब इस सेम जॉइंट के लिए अगर मैं अप्लाई करूं समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, जब भी आप किसी भी जॉइंट को लेके सॉल्व करते हैं, हमने स्टेप्स में ऑलरेडी देखा है कि किसी भी जॉइंट को ड्रॉ करते टाइम पे यू शुड टेक द एरोज ऑफ द फोर्सेस ऑलवेज अवे फ्रॉम द जॉइंट, ठीक है, वी ऑलवेज अज्यूम द फोर्सेस अवे फ्रॉम द जॉइंट, ठीक है, विच इज नथिंग बट टेंसाइल वी आर अज्यूमिंग। तो अगर मैंने एफ ऑफ एक्स 0 अप्लाई किया, हमारा साइन कन्वेंशन है राइट वर्ड पॉजिटिव लेफ्ट वर्ड निगेटिव, अकॉर्डिंग टू दैट मेरा फोर्स एफ डी सी राइट वर्ड है तो प्लस, माइनस एफ डी ए इज इक्वल्स टू 0। तो इस पे से मुझे एक रिलेशन भी मिल गया दैट एफ डी सी इज इक्वल्स टू एफ डी ए। इसका फायदा क्या है, अब अगर जब हम आगे जॉइंट सॉल्व करेंगे, इफ आई गेट एनी वन ऑफ दिस मेंबर, मुझे इनमें से किसी एक की भी वैल्यू मिलती है तो दूसरा मेंबर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस टू आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। ओके, सो 0 मेंबर आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में हमें एफ डी बी 0 मिल गया, वी गेट एन आंसर एज एफ डी सी इज इक्वल्स टू एफ डी ए। अब हम हमारी स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। फॉर दैट पर्पज आई विल इरेज दिस पार्ट। अब हमारा स्टेप नंबर 4 क्या है, द स्टेप नंबर 4 सेज दैट सिलेक्ट अ जॉइंट विथ नंबर ऑफ अननोन्स लेस देन 2 और नॉट मोर देन 2, ठीक है, तो हमें 2 अननोन से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंसिडर एफ बी डी दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट। अब हमें जॉइंट का नाम सिलेक्ट करना है, ऐसा जॉइंट जिसपे अननोन होना चाहिए 2 या 2 से कम, ठीक है। हम चेक करते हैं, अगर मैंने जॉइंट सी सिलेक्ट किया, व्हाट विल हैपन, वी हैव द अननोन एज सी डी, वी हैव द अननोन एज सी बी, आर सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब सी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जहां पे हमारे पास 2 ही अननोन है, राइट, सो आई कैन गो फॉर इट। सिमिलरली यू कैन सिलेक्ट जॉइंट ए एज वेल, नो प्रॉब्लम विद दैट, आप किसी भी एक जॉइंट को सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ए के ऊपर भी देखेंगे तो आर ए एक्स और आर ए वाई की वैल्यू आपके पास है, मतलब 2 ही अननोन बचते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैंने जॉइंट सिलेक्ट किया है जॉइंट सी। अब किसी भी जॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ करने का तरीका क्या है, सीधे उस जॉइंट का पॉइंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, और उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस जैसे भी हैं वैसे ड्रॉ करना है। तो अभी हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे एक फोर्स है आर सी, ठीक है, ये पता है कि एक मेंबर कनेक्टेड है एफ सी डी। मैंने आपको बोला नेमिंग कैसे देना है, जिस पॉइंट से आप जिधर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इधर जा रहे हैं, इसको हम नेमिंग क्या देंगे, एफ सी बी, ठीक है, ये हो गया एफ सी बी। अब इसका ये वाला एंगल भी हमें पता है, द एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, दिस एक्ट्स लाइक एन इंक्लाइन फोर्स, है ना, एक इंक्लाइन फोर्स जिसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 30 डिग्री, तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट आना चाहिए। अगर आपका फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो कंपोनेंट भी कैसे जाते हैं, अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो ये वाला हमारा कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ सी बी कॉस ऑफ 30, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ सी बी साइन ऑफ 30। एज एंगल इज विथ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट साइन है, ठीक है। आरसी की वैल्यू भी हमारे पास है एस 5.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ओके, सो अगर आप देखेंगे
एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 2 अननोन है, वेयर इन वाई डायरेक्शन वी हैव सिंगल अननोन। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया तो क्या क्या फोर्सेस आएंगे एफ ऑफ वाई में। देखो ये आरसी जो है ना, इट इज मूविंग इन अप डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड पॉजिटिव। सो वी गेट इट एज आरसी। एफसीबी का कंपोनेंट भी किधर जा रहा है, अप, प्लस एफ सी बी साइन ऑफ 30 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। इस पे से हमें क्या मिलेगा, जब अब मैं इसको यहाँ पे आरसी की वैल्यू रख देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एफ सी बी साइन ऑफ 30 इक्वल्स टू माइनस ऑफ आरसी। जब मैंने इसको इक्वलिटी के उधर साइड लिया तो ये क्या बना, निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो एफ सी बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आरसी की वैल्यू कितनी है, 5.5। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो फ्रॉम दैट वी गेट एन आंसर फॉर एफ सी बी एज एफ सी बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 11 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारा एक मेंबर। अब हमारी वैल्यू क्या आई है, माइनस। अगर माइनस आया है इसका मतलब कि आपने जो अज्यूम डायरेक्शन थी वो क्या थी, कंप्रेशन, सॉरी टेंशन। अभी हमारा आंसर क्या आया है, माइनस। इसका मतलब कि हमारे मेंबर में क्या है, कंप्रेशन। अगर आंसर प्लस आता है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है वो टेंसाइल है। अगर आंसर माइनस आता है इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है दैट इज कंप्रेशन। ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब मैंने एफ ऑफ एक्स 0 अप्लाई किया तो आप देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस दिख रहे हैं, ये भी लेफ्टवर्ड है, ये भी लेफ्टवर्ड है। तो लेफ्टवर्ड निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस ऑफ एफ सी डी माइनस ऑफ एफ सी बी कॉस ऑफ 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमारे पास सी बी की वैल्यू ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ एफ सी डी माइनस ऑफ -11 कॉस ऑफ 30 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस बनेगा प्लस। अब ये जो प्लस वैल्यू है ना, आप उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, वो माइनस। ठीक है, तो हमें मिलेगा एफ सी डी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे द आंसर विच यू गेट इज माइनस ऑफ 9.52। अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन विल कैंसल आउट विथ ईच अदर। फ्रॉम दिस वी गेट एन आंसर फॉर एफ सी डी एज 9.52 किलो न्यूटन। तो एज दिस आंसर इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला नेचर जो है दैट नेचर इज टेंशन। ठीक है, ये हमको मिल गया हमारा सेकेंड मेंबर एफ सी डी। तो अगर आप ट्रस्ट में अभी देखेंगे सी बी का आंसर है माइनस ऑफ 11। आई विल बी डिनोटिंग द आंसर ओवर हियर। सी बी का आंसर है माइनस ऑफ 11। माइनस ऑफ 11 मतलब हमारे फोर्सेस है टूवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, ओके। सी डी का आंसर आया है 9.52, डेट टू प्लस, मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट है आपके फोर्सेस, जिसकी वैल्यू है 9.52। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या है, 9.52। सो वी हैव रीच्ड अप टू द पॉइंट जहां पे हमें 3 मेंबर के अंदर फोर्सेस ऑलरेडी पता चल चुके हैं। अब अगर आप इस कंडीशन को देखो, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें ये भी पता चलता है कि फोर्स इन मेंबर AD is also 9.52 because FCD is equal to FAD। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे ये 4 मेंबर की वैल्यू हमें मिल जाती है जो कि है 9.52। ओके, ठीक है। अब हमारा बचा सिर्फ एक ही मेंबर दैट इज AB। सो उस मेंबर को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जहां पे हम क्या लेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम हमारा रिमेनिंग जॉइंट लेंगे दैट इज जॉइंट A। सो नाउ वी विल गो फॉर स्टेप 5। कंसिडर FBD ऑफ जॉइंट A। अब हम क्या करेंगे, A जॉइंट का FBD ड्रॉ करेंगे। A जॉइंट की FBD के लिए वैसे ही वापस बात तो वही है, जैसा है आपको दिया हुआ वैसा का वैसा ड्रॉ करना है। यहाँ पे आएगा RAY, ठीक है, ये आएगा RAX। यहाँ से है मेंबर हमारा FAD, ये वाला हमारा मेंबर है FAB। दिस एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री।
तो इसके हिसाब से अगर फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो कंपोनेंट भी अवे फ्रॉम द जॉइंट आएंगे। ये कंपोनेंट आएगा एफ ए बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये कंपोनेंट आएगा एफ ए बी साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ओके। और क्या वैल्यूज आपके पास है? एडी का आंसर आपके पास ऑलरेडी है 9.52 और ए वाई का आंसर आपके पास ऑलरेडी है 24.5 एंड आर ए एक्स का आंसर भी आपके पास है ऑलरेडी 9। ठीक है, ओके। हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए ए बी की। तो अगर आप देखें, हमने एफ ऑफ एक्स लगाया तो भी हमारे पास एक ही अननोन है, अगर हमने एफ ऑफ वाई लगाया तो भी हमारे पास एक ही अननोन है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक स्टेप सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। आई बी अप्लाइंग इट एज समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ वाई 0 अप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिला? देखो, ए बी का कंपोनेंट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, सो एफ ए बी साइन ऑफ 60, ठीक है, प्लस आर ए वाई, ये दो ही चीजें हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट इट एज एफ ए बी साइन ऑफ 60, आर ए वाई की वैल्यू है 24.5, व्हेन इट गोज ऑन दैट साइड इट विल मेक इट एज माइनस ऑफ 24.5। सो इस पे से हमें एफ ए बी का आंसर मिलता है माइनस ऑफ 24.5 डिवाइडेड बाय साइन 60। व्हेन यू सॉल्व इट वी गेट एन आंसर फॉर दिस एज माइनस ऑफ 28.29 kilonewton. As the answer is negative, it means कि nature of the force is compressive. ठीक है, so with this we get all the forces in members where the value is minus of 28.29. So the very last step in the question of truss is to draw the table of the forces. The table is very mandatory to make, where directly from the table your answers are clearly visible to the checker. So step number 6 is force table. Okay, force table is our step number 6. The table is like, we need to mention serial number, member, magnitude, and the last one is nature. ठीक है, so serial number, member, magnitude and nature is what the format we follow always to prepare a force table. So serial number is how many number of members you have. So as in start we know that 5 number of members are there, so we will make it as 5. Now member means we need to write down the name of member in this. So members के नाम हम लिखेंगे AB, we will write it as AB. Second member is AD. Okay, then we'll go for CB, CD and BT. ठीक है, so we have 5 members with us. Now as you can see on the diagram, we have written every value over here so that we can refer it. Now AB, answer for AB is minus of 28.29. So 28.29 compression. So as the answer is negative, two ways are there. Either you can write it as 28.29 and here you can show it as C, or else you have an habit to write down it as it is, then also no problem with that. If you show it as minus over here, then also it's perfectly fine. Now in member AD, the answer is 9.52 kilonewton. As the answer is tension, I'll be denoting it as T. Then for member CB, the answer was minus of 11. Minus of 11 means the nature is compression. Then for member CD, the answer is 9.52 kilonewton, that is tension. And the last one is member BD, where the force is 0. So we'll be showing that nature as dash. So here your question of truss will be completed.